Good morning, dear students. Today we will do the third part of globalization and Indian economy. In a previous lecture, we had discussed about the MNCs and how the MNCs they set up their production units in various countries. And in that discussion, we had seen that the MNCs, in some countries, the MNCs set up their production unit jointly with the local companies of those countries. And by doing this, the local companies are also benefited. The second option, the MNCs in many countries, they buy up the local companies and then they expand their production. Third option, in some countries, the large MNCs, they place orders for production with small producers and the products are supplied to the MNCs which then they sell under their own brand names. So these are the various ways in which the MNCs, they are setting up production units, they are doing their productions. Now we will discuss the next topic, that is globalization. What is the meaning of globalization? You can see the word globalization, it comes from the word globe. So globalization means it is a process. Process of what? Process of rapid integration or interconnection among countries. For what purpose? For the purpose of trade. तो ट्रेड के लिए जब ग्लोब के वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन और इंटरलिंक्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. एंड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन MNCs they play a very important or major role. कि in the past 2-3 decades MNCs क्या करते हैं? They are looking for locations around the world. वो लोकेशन क्यों ढूंढते हैं? अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए वो लोकेशंस ढूंढते हैं. क्यों लोकेशंस ढूंढते हैं? जहाँ पे उनको चीप रेट में मटेरियल्स अवेलेबल होता है, उसी कंट्री में वो प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं. एंड बाय डूइंग दिस, बाय गेटिंग चीप materials, by getting the materials at a very cheap rate, they are reducing their production cost. वो जितना प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे उतना ही वो उनका प्रॉफिट में एड ऑन हो जाता है. एंड वी हैड सीन दैट बाय choosing their locations, the MNCs they are reducing their production cost up to 50 to 60%. अब ये जो 50 to 60% प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है, इससे क्या होगा? उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. तो इसलिए जो MNCs पहले तो लोकेशंस चूज करते हैं, कंट्रीज को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, देन वो क्या करते हैं? उस कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट क्यों? दिस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं. व्हाई? टू परचेज लैंड, टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, टू परचेज मशीनरीज. वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो ट्रेड विल ऑल्सो, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड इसलिए अभी ट्रेड वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट बाय द MNCs in various countries. As the trade volume has increased and major part of trade is controlled by the MNCs. जबकि बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है और इसका एक बहुत बड़ा पार्ट MNC ही कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में फोर्ड मोटर्स 1995 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप किया था जॉइंटली with the Mahindra and Mahindra, and after that they started producing cars for Indian markets. And now they are not only producing cars for Indian market, the same number of cars they are exporting to various countries of the world. तो इससे क्या होता है? The MNCs एक एक्टिविटीज में जो सब्सटेंशियल ट्रेड होता है, ट्रेड में काफी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द MNCs.
इससे क्या होगा? ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द राइज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। राइज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था जो इंटीग्रेशन होता है प्रोडक्शन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट। तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोडक्शन विल इन्वेस्ट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है ट्रेड वॉल्यूम विल इंक्रीज। ट्रेड वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा वो मार्केट में सप्लाई होगा। And by doing this, there will be greater integration of production and markets across the country. This is the theme of globalization. Rapid, you can see here, this is a process of rapid integration or interconnection among the countries, among the markets of the countries for the purpose of trade. तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में more and more movement of goods and services from one place, one country to another. Not only the movement of goods and services but also the movement of investment and technology are also happened. So globalization में क्या होता है? Globalization में movement of goods and services, investment and technology from one country to another country. इसलिए ट्रेड वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। एंड दिस मूवमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक चीज का मूवमेंट होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अमंग द बिटवीन वेरियस कंट्रीज। व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर इनकम, and for better educational facilities, for better medical facilities. That is why people are moving from one country to another, and this process speed up the process of globalization. So let us see what is written here. What is globalization? Globalization is the process of rapid integration or interconnection among countries. And MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving among countries. Besides the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected, and this is to the movement of people between countries. So this is the theme of globalization. Next topic is the factors that enabled globalization. अभी we are discussing about globalization. तो globalization के पीछे factors क्या है? Which are the factors due to which the globalization could be implemented successfully? ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, रीजन क्या है? नाउ वी विल डिस्कस those factors. तो फर्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मीन्स रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन one major factor that has stimulated the globalization process. जितना टेक्नोलॉजी में रैपिड इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होगा उतना ही ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्पीड अप होता है. हाउ? लेट अस सी. पहले तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी how it is helpful for the process of globalization. In our geography chapter also we had discussed about transportation, mode of transportation. अब देखो ग्लोबलाइजेशन का मेन थीम क्या है, एसेंस क्या है? ट्रेड बिटवीन या अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ पीपल. तो ये मूवमेंट कब पॉसिबल है? व्हेन देयर इज अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब ट्रांसपोर्टेशन, गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मीन्स नॉट ओनली गुड, स्मार्ट एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए क्या चाहिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए. जैसे कि अभी दैट इज वाई द रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज,
जिसके थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन क्यों ना हो, these facilities should be developed and they should be very modern technology should be used in these mode of transportation. जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्पीड अप होगा. आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, कंटेनर्स होते हैं एक्सपोर्ट के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर्स यूज होते हैं. कंटेनर्स मीन्स यू कैन से वैगन भी बोलते हैं. तो कंटेनर्स दीज आर स्टील चेम्बर्स लाइक अ बॉक्स टाइप का कंटेनर्स होते हैं. उसमें गुड्स को स्टोर किया जाता है. जब स्टोर करते हैं तो वो कंटेनर में गुड्स इंटैक्ट रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, इसलिए डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. और आप एक बार अगर आप कंटेनर में लोड कर लो, उसके बाद उस कंटेनर को चाहे रोडवेज के थ्रू, रोड के बाय रोड अगर रेल स्टेशन तक पहुंचाना है, या रोडवेज के थ्रू अगर पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे पहुंचाना है, एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड. तो लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाते हैं, डैमेज भी कम होते हैं, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में डिले भी नहीं होते हैं. डिले क्यों नहीं होता है? अगर हर चीज मैनुअल होगा तो इट डिपेंड्स ऑन द लेबर. तो मैनुअल नहीं है सॉरी, मैनुअल नहीं है, मैकेनाइज्ड है. मीन्स कंटेनर में गुड्स को पहले थ्रू मशीन्स उसको प्रॉपरली अरेंज किया, स्टोर किया जाता है. उसके बाद उसको थ्रू क्रेन, वन ट्रक में से थ्रू क्रेन, ट्रेन में, या ट्रक में से फिर शिप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. So that is why improvement in technology, development in transportation technology is very important for speeding up the process of globalization. Let us see how it is related. Railways, waterways, airways, roadways are developed to facilitate faster transport of goods. जितना goods का transportation fast होगा उतना ही globalization process speed up हो जाएगा. Next, containers are steel chambers that can store products in efficient way to facilitate the transport. Use of containers enabled to lower the loading time, reduce the handling cost and hence faster delivery of goods. तो दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. पहले क्या होता था, ट्रक में गुड्स को लोड किया जाता था मैनुअली, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है. फिर जाके सी पोर्ट, एयरपोर्ट में दोबारा अनलोड करना पड़ता था ट्रक में से सामान, फिर उसको दोबारा शिप में, फ्लाइट में फिर लोड करना पड़ता था. इसलिए क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, डैमेज भी होता है, कॉस्ट भी, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है. अब पैसा नहीं होता है, सिर्फ कंटेनर में एक बार, वो भी मैकेनाइज्ड है, गुड्स को स्टोर कर देते हैं, उसके बाद एज सच कंटेनर को एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज, ये भी टेक्नोलॉजी है बट इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. Information and communication technology, you know, it is very important. Without information and communication technology, globalization cannot be happen. Possible ही नहीं है ग्लोबलाइजेशन का. लेट अस सी. आप देखो, एक इंटरनेट है, मोबाइल सर्विस है, सैटेलाइट्स है. अब इंटरनेट, कैन यू थिंक विदाउट इंटरनेट? विदाउट इंटरनेट अभी हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं. ये जो आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं, दैट टू ऑल्सो ड्यू टू इंटरनेट. अगर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं होती हैं तो कुछ भी पॉसिबल. आज के दुनिया में 21st सेंचुरी में वी कांट थिंक एनीथिंग विदाउट इंटरनेट. तो इसलिए दुनिया में, वर्ल्ड में किसी जगह से कोई भी हमें डेटा चाहिए, या किसी को कोई भी डेटा हमें सबमिट करना है, भेजना है थ्रू इंटरनेट, ये कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं. कभी भी, किसी भी टाइम, with a click of one button we can send any type of data and we can receive any type of data instantly.
ये छोड़ के भी थ्रू ईमेल भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉल सर्विसेज भी अवेलेबल है, और भी पेमेंट के लिए भी हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है और फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट भी ई बैंकिंग के थ्रू हो जाती है। सो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू इंटरनेट। अगर आप देखो, अगर किसी डेटा के लिए आपको अगर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, अगर यूएस का कोई डेटा चाहिए, हाउ यू विल गेट? इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर पेमेंट के लिए अगर आपको यूएस कंपनी को यूएस में जाके पेमेंट करनी है, it is also not possible. So everything is done. Why? Why? It is due to the improvement in information technology. Information technology में IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस उतना ही स्पीड अप होगा। अब मोबाइल सर्विस है, मोबाइल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप भी हम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईमेल व्हाट्सएप पे भी हम मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल से 1 to 1 हम कनेक्ट भी हो सकते हैं। कभी भी किसी चीज की जरूरत है, मीन्स इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये छोड़ के सैटेलाइट क्या है? टू लिंक कनेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए ये जो इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब देखो क्या हुआ, बुक में एग्जाम्पल है। इसमें एक न्यूज मैगजीन पब्लिशर्स हैं जो लंदन रीडर्स के लिए वो मैगजीन पब्लिश करते हैं। तो इसके लिए जो मैगजीन पब्लिश होती है लंदन में, उसका डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग पार्ट दिल्ली में होता है। अब दिल्ली में बैठ के दिल्ली ऑफिस में मैगजीन जो लंदन के मार्केट में पब्लिश होगा, लंदन में रीडर्स के लिए पब्लिश होगा, वो दिल्ली में बैठ के इसका डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग पार्ट होता है। अप्रूवल भी थ्रू ईमेल उनको लंदन ऑफिस से लेना पड़ता है। उसके बाद जो टेक्स्ट मैटर है मैगजीन का, वो लंदन ऑफिस से दिल्ली ऑफिस में भेजा जाता है। हाउ? वो टेक्स्ट मैटर अगर आप पोस्ट करते तो कितने दिनों में आता, ये तो पता ही नहीं था। अभी क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं। ईमेल से क्लिक ऑफ वन बटन में वो टेक्स्ट मैटर दिल्ली ऑफिस में पहुंच जाते हैं। फिर दिल्ली ऑफिस में मैगजीन तैयार हो जाते हैं। वो मैगजीन फिर क्या करते हैं, फिर वो बाय एयर लंदन में भेज देते हैं रीडर्स के लिए। अब दिल्ली ऑफिस ने काम किया है, पेमेंट चाहिए। हाउ द लंदन ऑफिस विल पे द बिल ऑफ द दिल्ली ऑफिस? थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग के थ्रू। तो ये जो फुल प्रोसेस है, कहाँ की मैगजीन है, कहाँ पब्लिक प्रिंट और डिजाइन हुआ है, टेक्स्ट कहाँ से आया है, दोबारा कहाँ जाके वो किस रीडर्स के लिए पब्लिश हो रहा है, एवरीथिंग इज डन ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। इवन इफ पेमेंट के बिना कोई तो काम नहीं करता है, तो पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है, तुरंत हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, टेक्नोलॉजी इज द first factor due to which globalization could be possible, जिसके लिए globalization possible हुआ है। In our next lecture we will discuss the next factor that have enabled globalization. Okay, I think this much it is clear to you. Thank you and have a good day.